open, we'll have some petrol. And just now I crossed Ballupur Chowk. Okay, the morning is lovely. I'm at 70 and we'll be crossing the ONGC Chowk now. To my right, it will be your good places, bakeries like Standard Bakeries, and the place where Virasat happens in Dehradun. It's a fest. Just a second, I guess my gains are very high. Well, I'll check later on. So this is the Cant area. As you can see, there are lots of trees. This is the only place that is and will be preserved. Otherwise, all of the Dehradun is totally gone. The beauty of it. This used to be a normal Dehradun. Everywhere lots of plants and greenery, good air. But now all the consumerism and madness in terms of development, unsustainable development, has led to cutting of lots of trees, plant, forest areas, and it's totally Alright guys, so I have reduced the gain and now I have been joined by Mr. Shubham Sharma. Today he is traveling with me in his Ola Electric. So we are going to Mussoorie. We are coming on to a bridge. It's a iron bridge. We have these holy cows going about their day in the morning. Alright, as you may not be able to see, but like the mountains are visible. Right now we are to an approach that goes to Mussoorie, and it's beautiful. Morning is lovely. It's a little bit cool in this area. I would say cool, not cold. Some patches of warmth is there due to concrete. As you know, concrete retains the heat and then slowly releases it, which is very bad. It creates a local hot zones, you know. That's why cities are more hot. There are more concrete. Lots of plants. They are PUDs. We need that. Lots of people going for the morning walks. This area is amazing for that. But the only concern is the extremely fast, unsustainable development that is being happening over here in these parts. Oh, that's a Labra with the stick. And that's the way the cookie crumbles. Yeehaw! Good old cyclists. Totally geared up. Looks like there was a fire in this area. बहुत ही भीषण आग के संकेत मिल रहे हैं और ये बहुत ही दुखद स्थिति है जो देखने को मिल रही है। इतने अच्छे अच्छे पेड़ हैं इस एरिया में।
आप देख सकते हैं कि काफ़ी ग्रीन एरिया है, ब्यूटीफुल एरिया है। रोड थोड़ी तंग है और इस ग्रीन और ब्यूटीफुल एरिया के बीचों बीच जंगल काट के लोग रिजॉर्ट्स बनाए गए हैं। To my left is a beautiful forest, and this is the first time that I'm seeing an area with no tree. Looks like a Aravali range, which is very, very hurtful and pathetic. This area is extremely green and beautiful. I'm not sure you have seen or not, but there was a beautiful langur ran past me. It was a lovely morning and I could see a lot of biodiversity. I was able to see a bird, monal, male monal, I guess. I'm not sure. And langur is obviously a little bit towards the common side. And then there was another bird, a big one, but I couldn't see it just in my peripheral. It just went away. Few other amazing biodiversity is also here in this part, in these parts. People, and especially a system that we have over here, government should understand that and preserve these areas. As you can see, this is another bird. This is a beautiful morning and sun is shining lovely above the foothills of Himalayas. Here's the good old Maruti 800. We're cruising along this narrow lane that goes to Suri. Behind me is my buddy and his electric two-wheeler, and we're checking how it performs. Going up, it goes a lot down. Coming down, maintains its charge. This road, this view is exquisite. And now, as I'll take the left, you can see on the left side huge chunk of rocks, which is calcium carbonate being mined illegally. This is the place, you can see. The face of this place was totally different and now it's totally again changed. This is the East Ramsarma. A cute dog. See the beautiful waterfall. It's called as the Kumari waterfall. Wonderful.
As always, cutie doggies are here. Hello. Are he's expressive. I'm not sure what happened. What happened? What is the issue? Okay. This is something new. This is Lambi Dihar Mines, as you might be able to see. यहाँ पर ये भूत बंगले के नाम से जाना जाता है. That's the place. Oh, गेट लग गया. पहले यहाँ पर खनन होता था कैल्शियम का, कैल्शियम कंपाउंड, कैल्शियम कार्बोनेट. और यहाँ पर टनल्स हैं. प्लानिंग थी कि रेलवे लाइन आएगी इस साइड. दैट वाज एट द ब्रिटिश एरा. लंगूर्स ईटिंग स्टफ. ये मेरी फेवरेट जगह है काफ़ी. Morning is the best time for bird watching in this area. काफ़ी सारी प्रजाति आपको मिल जाएंगी. सुंदर परिवेश में अगर आप ठहरते हैं और आवाज़ सुनते हैं सुबह सुबह, जो सुंदरता है उस स्वर में, उस आवाज़ में, वो आपको शायद ही कहीं मिलने. अप्रोच कर रहे हैं हाथी पाँव में. हाथी पाँव एक जंक्शन है, चौराहा समझ लीजिए, जहाँ से जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ रास्ता कटता है, मसूरी की तरफ, क्लाउड एंड साइड. एंड ये जो जिससे हम अप्रोच कर रहे हैं देहरादून की तरफ से, काफ़ी बर्बाद हो चुका है ये. 50%. The Ola has reached 50%, and we have traveled around 30 kilometers maybe. That tap that you are looking at, ये पानी की बर्बादी लग सकती है जो मुझे लगी थी, बट ये कनेक्टेड है नेचुरल रिसोर्सेज से. ये चलता रहता है. ये मेरा एक तरह से फेवरेट एरिया हुआ करता था, है भी, लेकिन जिस तरह के बदलाव इस एरिया में आए हैं जो कि बहुत ही अनसस्टेनेबल है, वो काफ़ी हार्टफुल कह सकते हैं आप एक शब्द में. ये पुराने ज़माने की हट्स
पत्थर से बनी हुई है। ये थोड़ा सा बुग्याल एक बंद करा गया है प्राइवेट एरिया बनाकर। पाइन, दैट वाज अ पाइन ट्री। यहाँ बहुत सारे पाइन के पेड़ हैं और आपके बांज के पेड़ हैं। बहुत ही सुंदर, अद्भुत जगह। प्रकृति ने हमें इतना सब कुछ दिया है, लेकिन हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो नियति है, वो पतन की तरफ अग्रसर करती जा रही है। ये देखिए कितना बड़ा पहाड़ होता था। ये पर्टिकुलर मिनरल है, ये ब्लैक कलर का है, तो मैं सोचूंगा कि क्या पता इसमें फेरस कंपाउंड वगैरह कुछ हो। उसका खनन बुरी तरह से काट दिए गए हैं, जंगल के जंगल। अभी हाल ही में ये दोनों तरफ से बंद करा गया है। नेचर ट्रेल है एक बहुत ही प्यारा, काफ़ी चढ़ाई है, चैलेंज आ रहा है एक्टिवा को। तो नेचर ट्रेल है काफ़ी प्यारा। और इस रोड पे मैं काफ़ी सालों से नहीं आया हूँ। नीचे तो उधर जाते ही रहते हैं और वो तो बहुत ही बर्बाद हो चुकी है जगह। बर्बाद जगह कर दी गई है, वो नहीं गई, लोगों ने ही करी है, हम नहीं करी है। ओवर टूरिज्म और अपना ओ ब्यूटीफुल, अमेजिंग। शुभम इज़ द बेस्ट पर्सन राइट नाउ बिकॉज उसके पास इलेक्ट्रिक है, तो ना आवाज़ कर दी है। तो इस एरिया के लिए उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। बट रेंज एंग्जाइटी ऑब्वियसली उसको भी हो रही है। इस समय 50% पे पहुंच चुकी है ओला उसकी। ओ माय गॉड, देयर वाज अ लेग, अ काउस लेग with a hoof and bones with little bit of flesh still attached. तो वही रेंज एंग्जाइटी हो रही है अभी। तो हम वापस जाएंगे, ढलान होगी काफ़ी पूरे रास्ते, तो सेम रहता है चार्ज। तो इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि अगर इस तरह से टेस्ट करा जाए कि वापस देहरादून पहुँच के कितना बचा है चार्ज। Oh yeah, this place is wow, amazing, amazing. Oops. यहाँ पर चाहिए थी आपकी बाइक जो कम आवाज़ करती हो और सस्पेंशन बढ़िया हो जिसके। आई गेस रेंज एंग्जाइटी तो मुझे भी हो रही है क्योंकि मेरा पेट्रोल काफ़ी कम हो चुका है। वेरी बैड रोड। कीप जंगल क्लीन, बाइक्स खड़ी है। भाई साहब रोड बड़ी खतरनाक है।
going downhill and no engine sound. लोग आने लगे हैं तो इंजन साउंड भी आ जाएगी डाउनहिल में, लेकिन मज़ा है. इंजन इज ऑफ. And we're cruising silently. It's beautiful. Eight minutes to 8 a.m. It's Wednesday morning, and evidently people have started to come, which is very unlikely. Usually they do not start till 10 a.m. हर जगह लिखा है प्राइवेट स्टेट. A bee bit me. I don't know कि क्या मैंने उसका बुरा करा. मेरे पीछे ही पड़ गई, देन वो मेरी लेग पे बैठ गई और मेरे ट्राउजर्स के ऊपर से उसने मुझे काट लिया. एंड देन उसने मुझे फॉलो करा 500 मीटर्स तक. शी वॉज एंग्री. व्हाट कुड आई डू? आई रैन फॉर माई लाइफ. Very different kind of bee, you know, not the usual one. Maybe a mountain bee. Doggos. Hey doggos. Another one. You want a lift? That's the leg I was talking about. देखो इसमें ब्रेक दबाने की जरूरत नहीं पड़ती. हाँ, रीजन होगा. That's a great thing. Few advantages, few disadvantages. That's the world we live in. Everything have the pros and cons. Oh, I collided with a beautiful white butterfly. I hope she's fine. Praying for her. We're going towards a टपरी जहाँ पर हमारे फेवरेट पराठे बनते थे. अभी संभावना है कि वो बंद हो गई है, तो उसी चीज़ का अवलोकन करने हम जा रहे हैं. आशा करते हैं कि वो विच इज सैड. टपरी इज़ क्लोज्ड. बंद हो चुकी है, उजड़ चुकी है, अब वो नहीं रही है, ये हम कह सकते हैं. अब हम लैंडोर की तरफ जा रहे हैं.
जब कभी इस साइड बर्फ़ पड़ती है तो ये एरिया में मतलब सनलाइट बहुत ही कम पड़ती है, तो यूजुअली स्नो लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन दिस एरिया। बिकॉज ऑफ दैट काफ़ी स्लिपरी हो जाता है, आइस, ब्लैक आइस एंड स्लिपरी हार्ड आइस वो फॉर्म हो जाती है। S1 Pro उसका रेंज टेस्ट भी हमारा चल रहा है। पीछे आ रही है ओला S1 Pro। नो डाउट अगर आप अपहिल जा रहे हैं तो बहुत तेज़ी से वो डिस्चार्ज करती है बैटरी, बट एट द सेम टाइम व्हेन यू आर कमिंग डाउन हिल तो इट हैव लाइक रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो रीजन से चार्ज होती है तो डाउन हिल पूरे टाइम लाइक रेयरली जो है डिस्चार्ज होती है बैटरी, एंड यूजुअली इट रिमेन्स सेम। सो इन दैट वे अगर आप टू एंड फ्रो कर रहे हैं माउंटेन में दैट सिनेरियो के लिए तो अभी तक हमें ये लग रहा है कि इट विल वर्क। राइट नाउ इट्स एट 44% एंड वी आर अबाउट हाफ वे। अब लाइक अगर हम 20% पे भी यहाँ से चलते हैं तो 10% तक मैक्सिमम होना चाहिए टिल देहरादून। अराउंड 8:45 AM and we are entering Mussoorie, like about to reach this library chowk. You can see the rush. लाइब्रेरी चौक पहुँचे हम। अब हालत देखिए, और इतनी गर्मी है इस समय यहाँ पर, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मसूरी तो लग ही नहीं रहा पहली बात। दूसरा अगर यार इतनी गर्मी में इतने लोग आए ही क्यों हैं यहाँ पर कुछ फील है ही नहीं। वेलकम बाय। पिक्चर पैलेस की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से मिल्टन टॉवर का रास्ता लेंगे। ये वाले स्कूल की लिटिल गर्ल ने मेरे से लिफ्ट ले रही थी अभी। मतलब जितना वो चलते हैं रोज़ पहाड़ों में, दैट्स क्वाइट अ लॉट। ओवर टूरिज़्म की झलक है ये, एक बहुत ही छोटी सी चल रही है आजकल भीड़ के उसमें। अब ये है आपका पिक्चर पैलेस। यहाँ पर अलग ही लेवल की भीड़ दिखेगी आपको, क्योंकि यूजुअली पीपल स्टे अराउंड दीज पार्ट्स। सिस्टर बाज़ार के बीचों बीच से मैं जा रहा हूँ। अब ये वन वे कर दिया गया है, बस मे बी 2 व्हीलर्स आ सकते हैं। बहुत कंजेस्टेड जगह है ये। सबसे पुरानी दुकानें, पुराने सेटलमेंट यहाँ पर अभी भी हैं, आप देख सकते हैं। उन्हीं के बीचों बीच सब नया होता जा रहा है। ये कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी पुरानी है।
इतना कंजेस्टेड है सिस्टम बाजार कि टू व्हीलर का भी ओवरटेक करना मुश्किल है। आप देख सकते हैं कि सम टाइम ये टू वे ट्रैफिक इसमें आ जाता है, ऊपर से भी आ रहा है, और वैसे ही ये वन लेन टाइप है। उसमें टू वे ट्रैफिक। और चढ़ाई सबसे भयानक दुनिया की। पैरेट और इसमें टू वे ट्रैफिक आ जाता है, देन यू हैव टू स्टॉप इन मिडल ऑफ तीचड़ाई। वैसे तो ये वन वे करा हुआ था, आई एम नॉट श्योर बाय कि ये दो वे वाला नीचे वाला ट्रैफिक क्यों जा रहा है। यहाँ से नीचे सिस्टम में जा रहे हैं, लैंड और की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। ये आपका डोमास इन कैफ़े एंड इट्स ब्यूटीफुल कैफ़े। और यही जो प्रॉपर्टी आप ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारे बहुत ही चहेते राइटर मिस्टर रस्किन बॉन्ड का प्लेस है। दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ लैंडो। आश्चर्यजनक रूप से अभी तक तो कम ही ट्रैफिक दिख रहा है मुझे जाता हूँ। लैंडोर अलग लेवल की क्वालिटी और फील रखता है, क्योंकि यहाँ पर रूल्स थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड स्पेस। काफ़ी सारा एरिया है जो है वो कैंट के अंदर आता है एक तो इसे लैंडोर कैंट भी बोलते हैं। हाँ, बेक हाउस ये चर्च है यहाँ का। This house is very prestigious and pristine. ये मेन चौक ही समझ लीजिए, एक और चर्च